Exercise 5.7, question number 7, e raised to 6x cos 3x. Let y equal to e raised to 6x into cos 3x. Differentiating with respect to x, y का derivative dy by dx. And here multiplication rule, e raised to 6x and cos 3x के बीच. E raised to 6x as it is, derivative cos 3x plus cos 3x as it is, derivative e raised to 6x. e raised to 6x as it is, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और 3x का बाकी बचा वो 3 हो जाएगा. cos 3x as it is, e raised to 6x का डेरिवेटिव e raised to 6x और 6x का 6. Taking 3 e raised to 6x common, 3 e raised to 6x taking common, so डेरिवेटिव माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x, ये 3 कॉमन निकल गया तो 6 में से 2 बचा. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, द्वितीय विकलन सोधूं है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 द कांस्टेंट वो बाहर निकाल दिया. डेरिवेटिव बिटवीन ई रेज टू 6x एंड दिस ब्रैकेट 3 आउटसाइड. नाउ मल्टीप्लिकेशन रूल बिटवीन दिस टू, ई रेज टू 6x एज इट इज एंड डेरिवेटिव माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x प्लस माइनस साइन 3x plus 2 cos 3x as it is, derivative e raised to 6x. 3 outside, e raised to 6x minus sin 3x का डेरिवेटिव plus 2 cos 3x का डेरिवेटिव plus this bracket as it is, e raised to 6x का डेरिवेटिव e raised to 6x and 6x का 6. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन 3x का माइनस cos 3x और 3x का बाकी बचा उसका 3 हो जाएगा. यहाँ पर 2 एज इट इज, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x एंड 3x का बाकी बचा वो 3 हो जाएगा. नाउ दिस ब्रैकेट एज इट इज एंड e रेज टू 6x का डेरिवेटिव e रेज टू 6x इंटू 6, ये भी एक ब्रैकेट है. ओके, नाउ टेकिंग 3 कॉमन, यहां से 3 कॉमन, यहां से 3 कॉमन, यहां से 3 कॉमन, हर जगह से 3 कॉमन निकलेगा तो 3 एज वेल एज ई रेज टू 6x कॉमन, 3 ई रेज टू 6x, सॉरी अभी 3 नहीं निकाल दे, सिर्फ ई रेज टू 6x कॉमन निकाल दें. ई रेज टू 6x कॉमन निकाल दें तो 3 ई रेज टू 6x, 3 तो पहले से था ही, ई रेज टू 6x कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा 3 cos 3x, यहाँ से क्या बचा माइनस 6 sin 3x, यहाँ से क्या बचा माइनस 6 sin 3x, यहाँ से बचा 6 2 12 cos 3x. 3 e raised to 3x, 3 cos 3x and 12 cos 3x will be 15 cos 3x and minus sin 3x minus 6 sin 3x minus 6 sin 3x will be minus 12 sin 3x. Now taking 3 common from 15 and 12, 15 और 12 में से 3 कॉमन निकलेगा आउटर. यहाँ 5 cos 3x minus 4 sin 3x और यहाँ पर हो जाएगा 9 e raised to 6x, 5 cos 3x minus 4 sin 3x. This is your d square by dx square, second order derivative. क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. tan इनवर्स x दिया है, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x and differentiating with respect to x, dy by dx equal to d by dx of tan inverse x. tan inverse का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon 1 plus x square. Now again differentiating with respect to x, d by dx of dy by dx equal to d by dx of 1 upon 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square का डेरिवेटिव ये फॉर्मूला से होगा 1 upon v का डेरिवेटिव माइनस 1 upon v square into dv by dx. दिस इज योर सिंपली v, 1 upon v माइनस 1 upon v square मतलब 1 plus x square द होल स्क्वायर. अब डेरिवेटिव बचेगा 1 plus x square का. 1 plus x square में 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x square का डेरिवेटिव 2x होता है. सो फाइनल आंसर विल बी माइनस 2x बाय 1 plus x square द होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 9, log x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है. टेक y इक्वल टू log x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ log x. पहले वाला log का डेरिवेटिव 1 अपॉन हो जाएगा, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सो दिस विल बी 1 अपॉन x log x. dy by dx is 1 upon x log x. Again differentiating with respect to x, d by dx of dy by dx equal to d by dx of 1 upon x log x. This is the d square by dx square.
आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/v इक्वल टू -1/v स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स. This is your v, 1/v, that is -1/v square into dv by dx. It is -1/x log x the whole square and derivative of x into log x. So this is the -1/x square and the log x the whole square. And here it is multiplication rule, x as it is derivative log x plus log x as it is derivative x. This one as it is -1/x square log x the whole square, x as it is log x का derivative 1/x plus log x as it is x का derivative 1. यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा, this x and this x will be cancel. So -1/x square log x the whole square and into bracket 1 plus log x. This is the second order derivative. Now question number 10, sin log x, second order derivative find करना है. y equal to sin log x, differentiating with respect to x, dy by dx equal to d by dx of sin log x. sin log x का डेरिवेटिव तो पहले हो जाएगा sin का डेरिवेटिव. साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos. सो इट इज cos log x. अभी क्या बचा, log x का डेरिवेटिव. log x का डेरिवेटिव कितना, 1/x, ऐसे लिख दिया 1/x. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos log x बाय x. यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा, भागाकार नियम. डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर, छेदमा छेदनो वर्ग छेद एम अंशनो विकलन माइनस अंश एम छेदनो विकलन. In the denominator whole square, denominator as it is, derivative numerator, minus numerator as it is, derivative denominator. X as it is, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा. सो माइनस साइन log x, यहाँ माइनस लिख दिया. अभी log x का बाकी बचा. नाउ माइनस cos log x as it is, x का डेरिवेटिव 1. log x का डेरिवेटिव 1/x, ये दोनों x कट हो जाएंगे, माइनस साइन log x माइनस कॉस log x अपॉन x स्क्वायर. दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर. अब थोड़ा बहुत याद रखना है आपको, 2-3 फॉर्मूला है. डी वाई बाई डी एक्स को कई लोग एफ डैश एक्स भी बोलते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को कई लोग y1 भी बोलते हैं. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को एफ डबल डैश एक्स बोलते हैं, y2 भी बोलते हैं. कभी कभी y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव करना आया तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2y1, फिर y1 का डेरिवेटिव एंड y1 का डेरिवेटिव y2. ऐसे सिंबॉलिक यूज होते हैं. अब हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 11, y equal to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d square by dx square plus y equal to 0. prove that वाले क्वेश्चन है. y equal to 5 cos x minus 3 sin x, differentiating with respect to x, first derivative dy by dx equal to 5 the constant, derivative cos x is minus sin x, minus 3 the constant, derivative sin x is cos x. So this will be minus 5 sin 3x minus 3 cos x. Again differentiating with respect to x. दूसरी बार क्यों डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि प्रूव दैट में सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 3 अभी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 5 साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस 3 एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, टेकिंग माइनस साइन कॉमन. सो इंटू ब्रैकेट 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स. ये जो माइनस कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में जो बता वही क्वेश्चन में दिया हुआ है, y इक्वल टू 5 कॉस एक्स माइनस. सो इसकी जगह पे y डाल देते हैं. सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, ये माइनस वाई को इस साइड पे लाते हैं. सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0. Same question number 12, y equal to cos inverse x, find second order derivative but in terms of y. y के टर्म में फाइंड करना है, y equal to cos inverse x, find second order derivative d square by dx square in terms of y. y equal to cos inverse x, so x equal to cos y, ये याद रखना है. y equal to cos inverse x then x equal to cos y, वो लास्ट में काम लगेंगे, ये जो है वो लास्ट में काम लगेगा. y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स. कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इट इज रिटन एज -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ. जो डिनोमिनेटर में पावर हाफ है ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में तो माइनस हाफ हो जाएगा. छेदमा रहेली 1/2 घात अंश में जाए
તો એ ઋણ થઈ જાય. So dy by dx equal to minus 1 minus x square to the power minus half. Now again differentiating with respect to x. So dy by dx of dy by dx equal to minus as it is dy by dx of 1 minus x square to the power minus half. ये माइनस तो था ही, पहले पावर का, पावर आगे आता है, पावर एक कम होता है, फिर बेस का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का. सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स स्क्वायर का 2x. सो 2 कट, तो आंसर विल बी माइनस एक्स, ये नीचे जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. अब ये जो मैंने जो बात की थी कि ये याद रखना, तो इसका यूज़ करेंगे हम. x की जगह पे cos y डाल देते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर y टू द पावर 3/2 माइनस cos y, 1 माइनस cos स्क्वायर y इज रिटर्न एज sin स्क्वायर y एंड sin स्क्वायर y टू द पावर 3/2. यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और 2 कैंसिल होने के बाद ये sin क्यूब y हो गया, ऊपर माइनस कॉस वाई, नीचे साइन क्यूब वाई. इसको स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई कॉस वाई बाय साइन वाई. सो इट विल बी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर वाई कॉट वाई. क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x सो दैट x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0. ये y2 मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 मतलब डी वाई बाई डी एक्स. y इक्वल टू जो गिवन है वो लिख दिया 3 cos log x प्लस 4 sin log x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 3 द कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स 3 द कांस्टेंट, cos log x का डेरिवेटिव प्लस 4 द कांस्टेंट, sin log x का डेरिवेटिव, cos log x का डेरिवेटिव माइनस sin log x का बाकी बचा, 4 द कांस्टेंट, sin log x का डेरिवेटिव cos log x का बाकी बचा. अभी आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, सो दिस बी माइनस 3 sin log x बाय x, 4 cos log x बाय x. नीचे जो x है डिनोमिनेटर में सेम है, वो सामने चला जाएगा. सो x इंटू y1 इक्वल टू माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू y1 इक्वल टू माइनस 3 कॉन्स्टेंट sin log x का डेरिवेटिव, 4 कॉन्स्टेंट cos log x का डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन रूल से होगा, x एज इट इज y1 का डेरिवेटिव प्लस y1 एज इट इज x का डेरिवेटिव, माइनस 3 द कांस्टेंट sin का डेरिवेटिव cos log x का बाकी बचा, 4 द कांस्टेंट cos log x का माइनस sin log x, यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड log x का बाकी बचा. x एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2, y1 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, माइनस 3 cos log x बाय x, दिस इज माइनस 4 sin log x बाय x. एक बार x लिख दिया LCM लेके, एंड x y2 प्लस y1. ये नीचे जो डिनोमिनेटर में x है वो सामने मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स y2 प्लस y1 इक्वल टू एज इट इज. ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस कॉमन 3 cos log x प्लस 4 sin log x. क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cos log x प्लस 4 sin log x इति y. सो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू माइनस y. सामने से माइनस y साइड पर आ गया, सो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15, if y इक्वल टू 500 e raised to 7x प्लस 600 e raised to minus 7x so that d square by dx square equal to 49y. y equal to 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x is given. Differentiating with respect to x, dy by dx equal to 500 e raised to 7x का डेरिवेटिव प्लस 600 e raised to minus 7x का डेरिवेटिव, 500 e raised to 7x का डेरिवेटिव e raised to 7x का बाकी बचा जो 7 होता है, 600 एज इट इज e raised to minus 7x का e raised to minus 7x और minus 7x का बाकी बचा जो minus 7 होगा. Again differentiating with respect to x, d square by dx square equal to 507 as it is, e raised to 7x का डेरिवेटिव e raised to 7x और 7x का 7, 600 and minus 7 as it is, that is minus 607, e raised to minus 7x का डेरिवेटिव e raised to minus 7x and minus 7. ये माइनस एंड माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे 49, यहाँ पर भी है 49 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा 500 e raised to 7x प्लस 600 e raised to minus 7x. It is from question, it is y. So d square by dx square equal to 49y.